حقوق العباد میں مفتی صاحب حلال اور حرام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ بے شک ہمارے دین کا حسن یہ ہے کہ یہ بندے کو موقع دیتا ہے کہ وہ مستحکم ہو جائے، ترقی کر جائے، عزت کے لحاظ سے، مکان کے لحاظ سے، لباس کے لحاظ سے، تعلیم و شعور کے لحاظ سے جتنی مرضی یہ ترقی کرنا چاہے اسلام اس کو اجازت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اپنے استحکام کے لیے کسی کا استحصال کرو۔ اسلام کسی کو روندنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، تو قدم قدم پر ایسے مواقع آتے ہیں کہ ہم کسی کو عروج بھی دلا سکتے ہیں اور اس کو ذلیل بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم کسی کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے باعث اجر بن جاتا ہے۔ جب ہم کسی کو تباہ کرنے کا ارادہ ہی کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے حرام بھی ہے اور ہمارے لیے ہلاکت کا سامان بھی ہے۔ اس کی پھر بہت ساری صورتیں ہیں جو حقوق العباد کے معاملے میں ہمارے اوپر حرام ہے کہ ہم وہ کام کریں اور ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس سے بچیں۔ پہلی بات، ہم کسی مسلمان کی غیبت نہیں کر سکتے۔ غیبت کرنا ہمارے اوپر حرام ہے کہ ہم مسلمان کو ایسے ڈسکس کریں کہ اس کی عزت کو جو ہے وہ سرے بازار جو ہے نیلام کر دیں۔ اچھا، گوسپس کے نام پہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ چیزیں تو چل رہی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے چل رہی ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے چل رہی ہیں، کسی کا عیب پتہ لگ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو گوسپ سمجھ کے کر رہے، غیبت نہیں سمجھ رہے۔ اب اصل میں ہمیں یہ چیز اصل میں قبلہ پتہ ہے معاملہ کیا ہے؟ ہم مختلف معاشرے میں رہتے ہوئے لوگوں کو فالو کرتے ہیں، رہنما بناتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی فکر کو لیتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہمارے سب سے بڑے اور واحد رہنما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کسی بھی صورت میں، سوائے ایک صورت میں آپ بیان کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کا رشتہ کر رہا ہو اور وہ آپ سے پوچھے کہ فلاں لڑکا یا فلاں خاندان کیسا ہے اور اس کے پوشیدہ عیب آپ کو پتہ ہو کہ وہ مقصد کوئی جرائم پیش ہیں یا کسی عیب میں مبتلا ہیں، تو آپ ان کو صلاح دے سکتے ہیں اور آپ کے ذمہ ہوگا آپ ان کو بتا دیں کہ ہم یہ چیزیں ان کی جانتے ہیں، اب آپ کی مرضی، آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ بڑی اچھی بات آپ نے بتائی۔ لیکن اس میں ایک اور بھی ہوتا ہے، بعض لوگ بہتان تراشی بھی کر دیتے ہیں۔ لوگ پوچھنے جاتے ہیں، جب وہ اس پہ سرچ کرتے ہیں تو بہتان تراشی بھی، بہتان تراشی نہیں کرنی۔ تو غیبت، بہتان تراشی، اسی طرح جھوٹ حقوق العباد میں ہمارے اوپر دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ مومن میں سارے عیب ہو سکتے ہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں مال بکے گا ہی جھوٹ کی وجہ سے، جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہمارا مال ہی نہیں بکے گا۔ سعودی عرب میں میں ایک دفعہ خبر میں امریکہ کی کمپنی کے شخص سے مل رہا تھا، تو میں نے کہا یہ چیزیں کہاں بنتی؟ کہتے ہیں یہ پاکستان میں بنتی۔ تو میں نے کہا میڈ ان پاکستان کیوں نہیں لکھا؟ کہہ رہے پہلے لکھتے تھے، اب جب سے اس میں فراڈ ہونا شروع ہوا ہے، بنتی وہی ہے لیکن ہم اپنے ملک کے جو ہے نا اس پہ سٹیمپ لگاتے ہیں۔ فراڈ ہم نے اتنا بڑھا دیا ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم بلیم ہو چکے ہیں۔ ہم نے ان کو بہت چیزیں سکھا بھی دی ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے یہ کہہ بھی دیا کہ جھوٹ مال بکوا دیتا ہے، برکت اٹھا دیتا ہے۔ تو حقوق العباد میں ہم جھوٹ سے بچیں۔ اسی طریقے سے جب ہم تجارت کرتے ہیں قبلہ، اس میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حقوق العباد تلف یوں بھی ہوتے ہیں، ہم چیزوں میں ملاوٹ بہت زیادہ کرتے ہیں، اس میں ہم اللہ کا بھی حق ضائع کرتے ہیں اور بندوں کا بھی حق ضائع کرتے ہیں۔ ایک بندے سے ہم نے 100 روپیہ لیا دودھ کا اور اس کو 70% پانی دے رہے ہیں اور 30% اس کو دودھ دے رہے ہیں۔ ہم نے پیسے لے اس سے مرچ کے اور اس میں ہم نے برادہ لکڑی کا ملا کے اس کو دے رہے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں، ہم صابن اوریجنل کے پیسے لے رہے ہیں اور اس کو جیلی جو ہے نا اس کو 130 روپے کی وہ ٹکیا پکڑا رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں۔ اب اس کمائے ہوئے مال سے حج بھی کریں تو اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ جب لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت بھی پسند نہیں اور ایسا مال بھی پسند نہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ امانت رسول صاحب جی، کیا پچھلی امتوں میں بھی حلال اور حرام کا تصور تھا؟ دیکھیے، وہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وہ جو گوسپ ہو یا وہ بیک بائٹنگ ہو تو وہ کسی بھی نام کسی بھی عنوان کے ساتھ کی جائے تو وہ برائی، بہرحال برائی ہے نہیں، لیکن وہ یہی کہتے ہیں، وہ قائم ہے اس پر، کہتے ہیں ہم گوسپ کر رہے ہیں، غیبت نہیں کر رہے، برائی تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو گوسپ کر رہے ہیں، گوسپ کر رہے ہیں۔ آپ پہ جامع شری کا لبادہ پہنا۔ استغفر اللہ۔ تو آپ نے جو پوچھا، دیکھیے پہلے دن سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
हिल्लत और हुर्मत इसको वाज़े किया है। जैसे कुरान पाक में हज़रत आदम और हव्वा के हवाले से कुरान कहता है वला तक़रबा हाज़ी शजरता, कि इस दरख्त के करीब मत जाना। तो ये कोई दरख्त नहीं था ऐसा, यानी जिसका कोई हम नाम ले सकें और बता सकें, लेकिन असल मकसूद क्या है? मकसूद असल ये है कि एक इंसान की आजमाइश है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इससे मना किया है, बस आपने ये काम करना नहीं है। अच्छा, इंसान की कोई फितरत और जिबिल्लत ऐसी है कि जिससे मना किया जाता है, अल इंसानु हरीसुन इला मा मुनिया, इंसान की कशिश भी उसी तरफ होती है जिस काम से मना किया जाता है। हाँ जी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चंद चीज़ों से मना किया और बाकी सब कुछ हलाल कर दिया। वो जो चंद चीज़ें मना हैं उसी पर इंसान बहस करता रहता है। जैसे मिसाल के तौर पर सुबह के वक्त हम शराब के हवाले से बात कर रहे थे, बहुत लोग कहते हैं जी कहाँ पर लिखा है कुरान पाक में कि शराब हराम है। अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुरान पाक ने जो बनी इसराइल का, कौम यहूद का जिक्र किया है, उनके इसी एटीट्यूड को कुरान पाक ने बयान किया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बिल्कुल हराम और हलाल को वाज़े कर दिया, लेकिन वो ख़ुद अपना, जिसे हम कहते हैं कि तकद्दुस के नाम पर और परहेज़गारी के नाम पर बहुत कुछ हलाल को अपने ऊपर हराम करते रहे। जी हाँ। अब कुरान पाक 3 उसकी वजह बयान करता है। एक वजह ये बयान करता है कि उनके जो फ़ुक़हा थे, उलमा थे, उनकी मुशगाफियों ने वो जो हिल्लत व हुर्मत के साथ, तहलील व तहरीम के साथ वो जो छेड़छाड़ करते रहते थे, उसकी वजह से बहुत कुछ उन्होंने अपने ऊपर हराम कर लिया। दूसरी वजह ये थी कि उस कौम को आदत थी ज़्यादा सवालात करने की, जी, पूछने की। बस देखिए ना कि जैसे तो उसमें फंस जाते थे, उससे फंस जाते थे। जैसे मिसाल, जो कानून रब का कानून है वो तो आफाकी कानून है, बिल्कुल ऐसे, और उसमें कोई इल्लत ही मौजूद नहीं है। यानी मिसाल के तौर पर आप देखिए कि मुझे आपने कहा जी आपने सेट पे आना है तो आप कपड़े अच्छे पहन कर आइएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि जी कौन सा होना चाहिए, 3 पीस हो, शलवार कमीज़ हो, किस लिबास में आऊँ? अब मैंने अपने आप को काला हो, सफ़ेद हो, अच्छा वो सवाल बहुत करते थे, अपने आप को महदूद कर लिया, मुश्किल में पड़ गया ना फिर। और तीसरी जो वजह थी वो ये थी कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम की अपनी ज़ाती तबी पसंद नापसंद भी होती थी। अच्छा, अब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मसलन अगर ऊँट का गोश्त नहीं खाया, उन्होंने अपने ऊपर ऊँट के गोश्त को भी हराम कर लिया, हालांकि वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की अपनी पसंद नहीं थी, आप नहीं खाते थे, या कोई वजह होगी, बीमारी, कोई तकलीफ की वजह से। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत से जानवर ऐसे थे पसंद नहीं थे, जब वो पककर सामने आते आप उस डिश को आगे बढ़ा दिया करते थे, सहाबा खाते थे। प्याज और लहसुन जी सरकार जो है वो पसंद नहीं कि मैं सरगोशी करनी होती है, लेकिन तुम खाया करो। जी, मतलब ये कि ये 3 वो बातें हैं कि जिस बुनियाद पर कुरान पाक सूरतुल अनाम में इस बात को बयान करता है कि सज़ा के तौर पर भी इन पर यह हराम कर दिया गया, जी हाँ, कई चीज़ों को। जी हाँ। तो असल बात यह है कि हिल्लत व हुर्मत का तसव्वुर पहले दिन से ही इल्हामी अदियान में हज़रत आदम से लेकर ये मौजूद है। तो लेकिन यह है कि उम्मतों का मामला ये होता है कि वो इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, इसकी जो लिस्ट है हुर्मत की इसको बढ़ा लेते हैं और अपने आप को मुश्किल में डाल लेते हैं। जब अपने ऊपर उस लिस्ट को भी यानी ज़्यादा लंबा कर लेते हैं, फिर खुद ब खुद फिर उसको तोड़ने पर भी आ जाते हैं। तो ये यानी कि गैर फितरी तौर पर वो अपने आप पर पाबंदियाँ लगाते हैं। लामा साहब, इसी हवाले से जो हम बात कर रहे हैं हुकूकुल इबाद की, हलाल और हराम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें अंदाज़ा ही नहीं हो पाता कि हम मिलने वालों को कितनी तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, और ये अल्लाह की बारगाह में भी कितना नापसंदीदा अमल है, लेकिन हम उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक है कानून साजी जो अल्लाह तबारक व तआला ने कर दी है जी। अब उसके बाद 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, फिर ज़हन साजी की ज़रूरत होती है। ठीक है। अगर हम ये समझें कि कोई मुसलमान के घर बच्चा पैदा हो गया है तो अब बस मुसलमान है, वो हलाल पे चले और हराम से इज्तनाब करे, नहीं, वहाँ पर ज़िम्मेदारी है सबसे पहले वालिदैन की, फिर असातिज़ा की, कि उनकी ज़हन साजी भी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे मेरे कुछ दोस्त मेरे साथ मुक़ीम रहे बैरून मुल्क, उनका ताल्लुक़ आज़रबैजान से था, ठीक है, और वो 90% वहाँ पे मुसलमान होते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमें नहीं पता था कि खंजीर का गोश्त हराम होता है। अच्छा, मालूमात ही नहीं है। अगर अभी भी आप में से कोई अगर वहाँ पे गयो बाकू वगैरह तो वो जानता होगा कि वहाँ का माहौल कैसा है। तो यानी हम सिर्फ ये कहें कि वो एक मुसलमान मुल्क है, मुसलमान घर में पैदा हुआ, तो अब उसे हलाल हराम का
पता होगा। नहीं, एक वो है कि जो सिर्फ मुसलमानों के घर में पैदा हुआ, अब उसके बाद वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि उसके लिए हलाल और हराम का तयन होना चाहिए। इसीलिए शरीयत ये कहती है कि माँ बाप को चाहिए कि जो बच्चे के लिए दरपेश चीज़ें होती हैं, वो जिन मामलात उससे की ज़रूरत होती है वो उसे तलक़ीन कर दी जाए। बचपन से ये चीज़ें उनको बताई जाएं, सिखाई जाएं, साथ की जाएं, जी, तो पता लगे। ऐसा ही है। जी। अब ज़हन साजी के बाद फिर आगे होता है कि उस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन। अब वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी कि हम अपने घर का इन्वायरमेंट ऐसा बना लें जी, कि अगर घर में मिसाल के तौर पर मेहमान आया है और वालिद बच्चे से कह रहा है उन्हें कह दो बाप घर पे नहीं है, और फिर बाद में 1 घंटे बाद हम बच्चे से कहे बेटा झूठ नहीं बोलना, बुरी बात होती है, हाँ, तो तो कैसे क्या हो? वो तरबियत तो लेंगे? कैसे पॉसिबल है? हाँ जी, बिल्कुल इसलिए कि ये जो हमारी औलाद है, हमारे बच्चे हैं, वो सुन के नहीं सीखते, वो देख के देख के जी सीखते हाँ, हैं। बिल्कुल। तो मसला तो ये है कि हलाल हराम का हम बार बार तकरार भी करते हैं, लेकिन मसला आ जाता है जहन साजी का कि हम उनकी जहन साजी नहीं करते। अब देखिए, मैं मिसाल देता हूँ। मसलन मैं यहाँ पाकिस्तान में रह रहा हूँ, मैं यहाँ शराब नोशी नहीं करता लियाज़ुबिल्ला, और एक शख्स वही है, वो किसी ऐसे मुल्क में रह रहा है कि जहाँ पानी की तरह से शराब मिलती है, वो भी नहीं कर रहा, लेकिन दोनों के अजर में फ़र्क है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात। मुझे शराब नोशी ना करने का अजर मिलेगा, वो और है, और एक वो है कि जो सुबह शाम ऐसी महफिलों या ऐसे मुआशरे में रहता है कि वहाँ पे वो देखता फिर भी नहीं करता, उसका अजर और होता है। वाह, तो वाह। इसी तरह अगर आप एक बंदे को जो है अपने कमरे के अंदर बंद कर दे और वो शाम को बाहर निकले, उसके लिए गुनाह के असबाब ही नहीं थे, और वो कहे मैं तो सुबह से शाम तक एक गुनाह भी नहीं किया, और इसी बंदे को आप मार्केट में बिठा दीजिए, फिर वो कहे मैंने धोखाधड़ी नहीं की, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने गीबत नहीं की, तो ये उसके लिए कमाल होता है। फर्क है। और यही तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो इंसान को आजमाइश में मुब्तला किया है, अल्लाह ने हमारे इरादे और इख्तियार की आज़ादी को सल्ब नहीं किया। जी हाँ, अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है, मेरे सामने 2 गिलास रखे हुए हैं, वो पानी का है, शराब का है, मैं जिसकी तरफ चाहूँ अपना हाथ बढ़ा दूँ, और यहीं से इंसान का कमाल जाहिर होता है, सही। और वहीं से जो मेरी जहन साजी या मेरी तरबियत है उसकी अक्कासी होगी। और मैं यहाँ पर यही अर्ज़ करूँगा कि हमें ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत यह है कि ठीक है हम फ़ख्र करते हैं मुसलमान हैं, हमें अपनी कौम की जहन साजी की ज़रूरत है, यकीनन, और बहुत। फिर उन्हें कानून साजी के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन है अपने घरों में, अपने माशरे में, या जिस हम स्कूल में भेजते हैं, यूनिवर्सिटी हर में भेजते हैं, सतह पर हर उसको सतह पर यकीन किया बहुत जाए, ज़रूरी है। बिल्कुल। उसकी इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है।